बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं जो चैप्टर नंबर 4 है, सीक्वेंसेस एंड मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस पे जाने से पहले हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था थोड़ा उसको रिकॉल कर। लास्ट टाइम हमने फंक्शंस डिस्कस किए थे with some background of relations, definition of function, examples of functions, and then at the end arrow diagram of function. आज के लेक्चर में हम सीक्वेंसेस पे बात करने जा रहे हैं। and this is some kind of function, इसको हम further define करते हैं। अब हमें सबको पता है कि फंक्शंस के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, तो सीक्वेंस भी एक फंक्शन होता है जिसको हम प्रॉपरली अभी डिफाइन करते हैं। फिर सीक्वेंसेस में ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, उसकी एक एग्जांपल कह लें। देन वी विल गो टुवर्ड्स सीरीज, और सीरीज के लिए हम फिर समेशन नोटेशन यूज़ करेंगे। then we will go towards product notation, properties of sequences, change of variables, and at the end factorial notation. So let's come to define a sequence. A sequence is a function whose domain is the set of all non-negative integers. यानी ऐसा function जिसकी domain non-negative integers हैं. We typically represent a sequence as a set of elements written in a row. In the sequence denoted am, am plus 1, am plus 2, up to an. Each individual element ak is called a term. The k in the ak is called a subscript or index. यानी सीक्वेंस की क्योंकि डोमेन नॉन नेगेटिविटी इंटीजर्स हैं, सो डोमेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 and in positive numbers 1, 2, 3 and so on. It can be any integer. और जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं we can write these in the form जो कि अभी हमने लिखी है। Here we have an example in which two sequences are given. Define sequences A1, A2, A3 and B2, B3, B4 so on by the following explicit formulas. First one is the explicit formula for the sequence A, और A का की kth term को represent कर रहे हैं। AK is equal to K over K plus 1 for all integers k greater than or equal to 1. Similarly, the other sequence B can be represented as Bi is equal to I minus 1 over I for all integers I greater than equal to 2. Compute the first 5 terms of both sequences. So if we take first sequence, then AK is k over k plus 1 for all integers k greater than or equal to 1. So k is starting from 1 and all other values are greater than 1. So if we substitute k is equal to 1 here, in place of k we will have A1 is equal to 1 over 1 plus 1, that is 1 over 2. Similarly, if we are putting k equal to 2, then A2 will be 2 over 2 plus 1, that is 2 by 3. Then k is equal to 3, it is 3 over 3 plus 1, 3 over 4. Similarly, we can find other values A4 and A5. Now if we come on the second sequence B, so B is represented as Bi is equal to I minus 1 over I, and I is varying from 2, that is I values of I is either equal to 2 or greater than 2. So if we put I is equal to 2 here, then it is B2 will be the first term of this sequence. So B2 will be 2 minus 1 over
2, that is 1 by 2. For I is equal to 3, B3 is 3 minus 1 over 3, that is 2 by 3, and so on. So okay, we can calculate all remaining values of B also from putting values of I. So here you can observe that A1 and B2 are same, that is first term of the sequence A is equal to the first term of the sequence B. Similarly, if we see A2 is the second term of this sequence A and B3 is the second term of the sequence B, तो ये दोनों भी सेम है. इसी तरह से बाकी सारी वैल्यूज भी अगर हम कंपेयर करें तो 3 by 4, 3 by 4, 4 by 5, 4 by 5 and 5 by 6, 5 by 6. So all the values of these two sequences are same, right? Here we have an alternating sequence. So if we first define this sequence, then it will be very convenient for us to understand this alternating sequence. And basically alternating sequence is the sequence which have positive and negative sign as well as positive sign as well as negative sign. Therefore we can say this is an alternating sequence, or we can say that if we have alternating sequence and if its first term is positive, then obviously its second term will be negative. Or we can have some other alternating sequences whose first term is negative and second term is positive, and so on. Here we have a sequence Cj is equal to -1 with the power j for all integers j greater than or equal to 0. So compute the first 6 terms of the sequence C0, C1 up to C2 and so on, defined as follows. तो ये हमने सीक्वेंस देख लिया. इसमें अगर j is greater than or equal to 0 है, so we can the first value of j is 0. So if we put j is equal to 0 here, then we have C0 is -1 with the power 0, that is equal to 1, because any number with power 0 is equal to 1. C1 is -1 with the power 1, that is equal to -1. C2 is -1 with the power 2, that is equal to +1, because square of any negative number is a positive number. C3 is -1, C4 +1 and C5 -1. So you can see here that first term is positive, then negative, then positive, and so on. So these we have written here 6 terms, first 6 terms of this sequence, and this you can observe this sequence oscillates between 1 and -1. Now let's come on explicit formula. This is a formula related with every sequence. Here you can see कि ये जो हमारा sequence है, ये 1 उसकी पहली टर्म है, -1/4 दूसरी टर्म है, और 1/9 तीसरी टर्म है, एंड सो ऑन. इसके अंदर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एक ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, क्योंकि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, सेकेंड नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, एंड सो ऑन. तो हम ऐसे एक सीक्वेंस के लिए एक्सप्लिसिट फॉर्मूला लिखेंगे जो कि ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है. सो denote the general term of the sequence by AK, and suppose the first term is A1. Then observe that the denominator of each term is perfect square. तो ये आप सब ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 1 का डिनोमिनेटर हम 1 ले सकते हैं, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. अगेन फॉर सेकेंड टर्म इट इज़ 1/4 -1/4, तो 1 के साथ जो डिनोमिनेटर है वो 2 का स्क्वायर है. अगेन इन द थर्ड टर्म 1 के साथ जो डिनोमिनेटर है वो 3 का स्क्वायर है, देन 4 स्क्वायर एंड देन सो ऑन. सो डिनोमिनेटर वी कैन राइट एज द स्क्वायर ऑफ सम नंबर. So if we take it as
k, then we can write k square in the denominator. And now we have to consider here कि पहली टर्म में 1 आ रहा है और दूसरी टर्म में -1 है, फिर 1 है, फिर -1 है. तो जो हमें साइन देखना है, साइन एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो हम अगर kth टर्म को लिखें तो हम लिख सकते हैं a k इज इक्वल टू आइदर +1 और -1 विद डिनोमिनेटर k स्क्वायर. एंड अब यहाँ पर ये थोड़ा सा यानी यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि न्यूमरेटर में हमारे पास +1 है या -1 है. तो लेकिन साथ में हमें ये भी देखना है कि पहली टर्म +1 के साथ है और दूसरी टर्म में नेगेटिव साइन आ रहा है. तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला ले लें ये a k इज इक्वल टू -1 विद द पावर k + 1 ओवर k स्क्वायर एज डिनोमिनेटर कंटेन सम स्क्वायर ऑफ सम नंबर. तो अगर k उसको ले लिया हमने तो k स्क्वायर ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ ये है कि प्लस और -1 को ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा. सो इफ वी टेक k इज इक्वल टू 1 हियर इन दिस फॉर्मूला, तो k 1 लेने से क्या होता है कि ये 1 + 1 2 हो जाता है, पावर जो है वो इवन बन जाती है. तो -1 की पावर इवन होगी तो +1 आ जाएगा. सो फॉर k इज इक्वल टू 1 वी विल हैव a1. सो a1 विल बी इक्वल टू 1 ओवर 1 स्क्वायर दैट इज +1, जो कि हमारे सीक्वेंस के अंदर ऐसे ही है, पहली टर्म 1 है. देन इफ वी टेक k इज इक्वल टू 2, तो हम देखते हैं कि ये जो हमने फॉर्मूला जनरेट किया है ये सारी टर्म्स जनरेट कर रहा है. सो फॉर k इज इक्वल टू 2 इट इज a2 एंड a2 इज -1 विद द पावर 2 + 1 ओवर 2 स्क्वायर. सो इट इज 2 + 1 मीन 3. तो -1 की पावर 3 करेंगे तो ये नेगेटिव साइन अपीयर हो जाएगा माइनस, और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर है यानी 9, 2 स्क्वायर है, सॉरी 2 स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा. सो आवर सेकेंड टर्म इज -1 ओवर 4, राइट. So this we have generated a formula for the given alternating sequence. तो हम किसी भी सीक्वेंस के लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं जो उस सीक्वेंस की सारी टर्म्स को जनरेट कर सकता हो, बट मेक श्योर कि आप कम से कम 3 या 4 वैल्यूज लेकर देख लें कि आपका जो फॉर्मूला आपने जनरेट किया है क्या वो उस पूरे सीक्वेंस को जनरेट कर रहा है. समटाइम्स ऐसे होता है कि पहली 2 टर्म्स तो जनरेट हो जाती हैं लेकिन उसके बाद आगे वाली टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं. तो इसलिए एक दफ़ा से हमें फॉर्मूला बनाने के बाद अगेन वी हैव टू सी दैट दिस फॉर्मूला इज आइदर करेक्ट और नॉट फॉर पुटिंग आफ्टर पुटिंग सम वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला, राइट. ये ऐसा नहीं है कि ये एक फॉर्मूला हमने जनरेट किया तो ये एक इस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यही एक फॉर्मूला है जो ये हम लिख सकते हैं, बल्कि हमने यहाँ पर नीचे एक और अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी जनरेट किया जिसको कि आप देख सकते हैं कि a k इज -1 विद द पावर k. तो डिनोमिनेटर में k + 1 होल स्क्वायर है फॉर ऑल इंटीजर्स k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ये भी उसी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और फॉर्मूला लिखा गया है जिसमें कि आप अगेन यू कैन चेक कि अगर k को 0 रखें तो a0 विल बी फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. तो a0 जो है ये 1 आ जाएगी. इसी तरह से a1 जो है सेकेंड टर्म दैट इज -1 ओवर 4, राइट. So in this lecture we have discussed that in the start we have said that जो 2 different representations थी, A एक sequence था और एक B था, तो हमने देखा था वहाँ पर कि दोनों की terms same थी. Basically those 2 sequences were representing the same sequence, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों के लिए यानी एक सीक्वेंस के लिए 2 डिफरेंट फॉर्मूलाज वहां पर लिखे हुए थे. जो सबसे पहली एग्जांपल हमने आज के पार्ट में की है AI और इसी तरह से B
बी जो सीक्वेंस है उसके बारे में भी हमने देखा है कि दोनों की पहली 6 टर्म्स जो है वो सेम है। सो वी कैन से कि एक ही सीक्वेंस को लिखने के 2 एक्सप्लिसिट फार्मूलाज हमने पहली एग्जांपल में देख लिए हैं। इसी तरह से आगे हमने चल के ये देखा कि जो सीक्वेंस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज़्यादा एक्सप्लिसिट फार्मूलाज हो सकते हैं। मसलन इस एग्जांपल के अंदर भी हमने देखा है कि एक सीक्वेंस अगर लिखा हुआ है जिसकी 5-6 टर्म्स नोन है तो हम उसके लिए एक एक्सप्लिसिट फार्मूला बना सकते हैं, यानी ये वो ऐसा फार्मूला होगा जिससे कि उस सीक्वेंस की सारी टर्म्स जनरेट हो सकती हैं। और हमने इसके ऑपोजिट काम भी किया है कि यानी ये ऑलरेडी फार्मूला पहले से था हमारे पास और हमने वहाँ से सीक्वेंस की टर्म्स जनरेट की हैं और अब हमने एट द एंड क्या काम किया है कि टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं तो हमने एक उसके लिए एक्सप्लिसिट फार्मूला बनाया है। ठीक है, सो दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर।